high courts, and various tribunals in India. Beginning his career with Khaitan and Company in 1981, he established his independent practice in 1983 and was designated as a senior advocate by Delhi High Court in 2009. He is a lead trainer and part of Advocacy Skills training program in India since its inception in the year 2002, which was launched as a part of Indo-British Initiative. He has trained over 8,000 advocates nationwide. Additionally, he is a senior mediator accredited with Delhi High Court Mediation and Conciliation Center since its inception in the year 2006. We are privileged to have with us Mr. Rajiv Virmani today, and I invite him to please address the gathering. Thank you for your kind words. Honorable Justice Sachdeva, Honorable Judges of High Court of Madhya Pradesh, the judicial officers. I have a long list, I will not repeat all the names. My dear brothers and sisters and colleagues at the bar, I am truly honored and privileged to be here amongst you to share with you my experience, whatever I have learned over a period of time as far as the trial advocacy skills are concerned. This is a program which is not going to be about any substantive law or procedural law. So I'm not going to be talking to you about any sections of law. Let me tell you, all of us are exposed to examination in chief and cross-examination since our childhood. So when you have a fight with your sibling, your parents ask you, "Kya hua? Kisne mara?" So that's where the examination in chief begins. And as you grow up, you come late from the school, you are asked, "Kahan the? Itni der kyun ho gayi?" So there is an examination in chief going on. And as you grow older and you're working, and I'm saying in a lighter vein, and you come back home after dinner and somebody is already waiting for you for dinner, you are told, "Aaj fir khana kha ke aaye hoge bahar." So that's a cross-examination. So there is a difference when information was sought from you, कि कहाँ थे, इतनी देर क्यों हो गई, to a suggestion कि बाहर खाना खा के आए हो क्या. That means something is being conveyed to you and you are being asked to say yes or no. So we have all experienced it, but yes, when we come into this profession, we need to relearn it and relearn it in such a fashion that we are able to efficiently assist the court. You see, the skills are all about us being efficient because the judges are the consumers of our skills. हम जो भी कोर्ट में काम करते हैं, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये होता है कि जजेस को कोर्ट को असिस्ट करें, और जितना एफिशिएंट हम होंगे उतनी ही एफिशिएंट हम अपनी कोर्ट को बना पाएंगे. सो ये जो स्किल्स हैं, इसका एम यही है कि हम अपने आप को एफिशिएंट बनाएं. वी लर्न दिस स्किल so that we are able to help in administration of justice. I have a small presentation that I wish to present before you. This is Windows. Yes. So, since आप लोगों ने टॉपिक चुना आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, तो मेरी पहली स्लाइड ये है कि व्हेन डू वी क्रॉस एग्जामिन. बड़ा छोटा सा सवाल होता है, कब क्रॉस एग्जामिन करते हैं. तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज नीडेड जब एक ऑपोजिट पार्टी अपना विटनेस लाती है, उसका एफिडेविट एविडेंस फाइल करती है सिविल केसेस में, या उसको एग्जामिन करती है इन चीफ. यू हैव टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट क्रॉस एग्जामिन, उसकी टेस्टिमनी पढ़ी जाएगी और हो सकता है आपके खिलाफ हो, आपके क्लाइंट के खिलाफ हो. क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है. सो अपॉर्चुनिटी हमेशा दी जाती है क्रॉस एग्जामिन करने की. नाउ therefore that takes us to the first question. So examination in chief. Examination in chief में क्या होता है? एक विटनेस आता है एक पार्टी का. That witness has to tell the court कि क्या हुआ है. What is the story? What is it that the witness knows? So it is very important that we learn how to extract this story from the witness. Now you
you've seen in some cases there is like criminal trials, you only have oral examination in chief. वहाँ पर कोई एफिडेविट इन एविडेंस नहीं होता. 138 केसेस में होता है एफिडेविट इन एविडेंस, बट ज़्यादातर केसेस में आपने देखा है ओरल एग्जामिनेशन इन चीफ ही होता है. सो बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि ओरल एग्जामिनेशन इन चीफ जब होता है या एफिडेविट भी जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाएं उसको. एंड हमें कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रूव करने होते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में, जो डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी ने डिनाई करे होते हैं, तो हमें वो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी करते हैं. एंड therefore by examination in chief we present to the court facts which are relevant or the facts which are in issue. We need evidence on those facts. Now इसकी तैयारी कैसे करें एग्जामिनेशन इन चीफ की? हर एक किसी का अपना तरीका होता है. हमें लॉ स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि हम एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी कैसे करें. हाउ डू वी प्रिपेयर? इट इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर curriculum. So we all learn by seeing our seniors or by seeing others that how they are going about the business of preparing for cross-examination. But there is a method also, and my endeavor today is कि मैं आपको वो method जो है, जो हमने सीखा है, ऐसे जैसे संजीवा ने बताया 2002 में एक ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था. We were all trained and we have been training lawyers across the country on these skills. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आपसे जो हमने सीखा है आपके साथ शेयर कर सकूं. तो प्रिपरेशन में सबसे बड़ी जो बात होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई व्हाट आर द फैक्ट्स दैट आर इन डिस्प्यूट. कभी भी कोर्ट में खड़े होकर अगर आप एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी करेंगे तो आप काफी कुछ मिस कर जाएंगे. और प्लीज रिमेंबर, एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं. आपका क्लाइंट आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया है. इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर sufficiently in advance for examination in chief. And therefore we need to read, we need to talk to the client, और हमें देखना होगा कि क्या facts हैं which are in dispute and what are the issues that are required to be addressed by the evidence of the parties. आपको अपने क्लाइंट से काफी डिटेल में बात करनी होगी. ये मत सोचिए कि हम कोर्ट में 10 मिनट पहले बुला लिया, आधा घंटा सुबह पहले बुला लिया तो तैयारी हो जाएगी. नहीं होगी, क्योंकि जब आप क्लाइंट से बातचीत शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि काफी कुछ और भी है उससे जानने का. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइंट को बुलाएं और डिटेल में उससे बात करें, समझें कि उसको क्या पता है. प्लीज रिमेंबर, जो एविडेंस दे रहा है विटनेस, उसकी कहानी जज को हमने बतानी है, अपनी कहानी नहीं बतानी. इट इज नॉट ए स्टोरी ऑफ द लॉयर दैट हैज टू गो टू द जज, इट इज द स्टोरी ऑफ द विटनेस दैट हैज टू गो टू द जज. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मीट योर क्लाइंट, इंटरव्यू हिम, डिस्कस विद हिम, आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस विटनेस से हमने प्रूव कराने हैं. अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उस विटनेस को दिखाएंगे जो उसने कभी देखा ही नहीं होगा तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं स्टैंड कर पाएगा और विटनेस आपका डॉक्यूमेंट कभी प्रूव ही नहीं होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो इन एडवांस. यू नो, प्रिपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्किल्स, नॉट ओनली फॉर ट्रायल बट इवन अदरवाइज. एंड देन आपकी जो विटनेस की स्टोरी है उसको आपको डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करना होगा. आई टेल यू हाउ. आप सबने नॉवेल्स पढ़े होंगे, कहानियां पढ़ी होंगी. some novels are very thick, some are thin. So novels also have different chapters, chapter 1, chapter 2, chapter 3. कुछ नॉवल जब आप पढ़ते हैं तो एक बार आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आखिर के चैप्टर तक आप छोड़ना नहीं चाहते, चाहे रात के 2 बज जाए. और कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं जो आप उठाते हैं और 10 मिनट में कहते हैं बहुत बोर हो गए. क्यों होता है ऐसे? एक स्टोरी है जो चलती है और आपको बांध के रखती है. You feel so good, you read that story. It is consistent, it is flowing, and it is taking you to a logical end. और कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आप कुछ पेज पढ़ने के बाद कहते हैं पता नहीं क्या लिखा है. So imagine आपका एग्जामिनेशन इन चीफ आपने कराया. That statement is there before the judge sitting in chamber.
when he has to write a judgment, and he's not able to understand कि ये बोला क्या है विटनेस ने, समझ ही नहीं आ रहा. तो क्या होगा, if you are not able to explain to the judge through the testimony of your witness कि आपके क्लाइंट का केस क्या है, तो आप अपनी चीज साबित ही नहीं कर पाएंगे, प्रूव नहीं कर पाएंगे, and it will lead to dismissal or rejection of your case. So it's important for us to think of the story. I'll tell you, आज मैं सुबह दिल्ली से आया हूँ. सुबह मेरी फ्लाइट थी 10 बजे, 12 बजे जबलपुर में लैंड करी है. उसके बाद मैं होटल गया, वहां पर मैंने लंच किया, उसके बाद थोड़ी तैयारी करी शाम की, फिर मैं हाईकोर्ट में आया. तो इस पूरी कहानी में आपने देखा देयर आर चैप्टर्स, देयर आर टॉपिक्स. दिल्ली से चला, यहाँ पहुंचा, होटल गया, खाना खाया, तैयारी करी, हाईकोर्ट आया. अगर ये स्टोरी आप लिखें कि आप अगर विटनेस से पूछें कि भाई आप हाईकोर्ट कितने बजे पहुंचे थे, 4 बजे पहुंचे थे. सुबह दिल्ली से कितने बजे चले थे, 10 बजे चले थे. तो क्या हो रहा है, एक लॉपसाइडेड स्टोरी सामने आ रही है, फ्लो नहीं करेगी वो स्टोरी. सो कोई भी विटनेस का जिसका आपने बयान करना हो, आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, यू नीड टू डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स और टॉपिक्स, एंड दोस टॉपिक्स आर बेस्ट डिवाइडेड टाइम वाइज. अगर आप टाइम एलोकेट कर दें कि इस दिन इस वक्त की ये बात है, उसका क्या बयान हो सकता है, उसके बाद क्या रेलेवेंट टाइम है, क्या रेलेवेंट डेट है, उसका क्या बयान हो सकता है, द स्टोरी विल मूव फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक एंड चैप्टर टू चैप्टर. एंड जो पढ़ेंगे, जब कोर्ट में जज पढ़ेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये वाकया हुआ है इस तरह से, जो भी whatever is the statement you want the judge to believe in, वो उस तरह से उसको समझ सकेंगे. तो dividing the story that the witness has to tell into smaller chapters is very important. Please remember. Now, अगर आप oral examination कर रहे हैं, तो once you know कि ये story के ये chapters हैं, chapter 1 से chapter 5 तक, तो pick up one topic, pick up one chapter, उस पर सवाल पूछिए, और वो chapter जब खत्म हो जाए, तब दूसरे उस पर जाइए, नेक्स्ट चैप्टर पर. उसका एक फायदा और भी है. देखिए, जो विटनेस आया है उसकी तो आप बीती है, उसके साथ घटना हुई है, उसको पता है. अगर आप पहले उससे शाम की बात पूछेंगे और तुरंत बाद सुबह की घटना पे ले जाएंगे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा जवाब देने में. So it is important from the witness point of view also that he narrates the story the way it has happened, that you move from one chapter to the other. अब सवाल ये उठता है कि हमने कई बार देखा है कोर्ट में कि जब सवाल पूछते हैं तो हम बहुत लंबा सा सवाल पूछ लेते हैं कि जब आप शाम को हाई कोर्ट आए थे, उसके पहले आप होटल में थे, सुबह दिल्ली से चले थे, कितने बजे थे, काफी सारी चीजें आ गई इस सवाल में. तो विटनेस जो है वो सकता है कंफ्यूज हो जाए, और जो जवाब आएगा वो गार्बल्ड होगा, हो सकता है कोर्ट को भी ना समझ में आए बड़ी बात. तो एक टेक्निक हम यूज करते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. फ्रेम शॉर्ट क्वेश्चंस, और मैंने हाईलाइट करा है नॉट लॉन्ग वंस, बिकॉज हम लोगों में से कईयों की आदत होती है कि बहुत सारे एक सवाल को बहुत लंबा कर देते हैं. तो लंबा क्यों होता है, उसका कारण है. अगर एक सवाल में कई सारे फैक्ट्स हम रोल इन कर दें, मिक्स कर दें, तो वो सवाल लंबा हो जाएगा. जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अगर पूछें कि भाई आप कितने बजे हाई कोर्ट आए थे और उसके पहले आपने क्या खाया था और सुबह कितने बजे चले थे, तो उसमें 3 फैक्ट्स आपने रोल इन कर दिए एक सवाल में, तो बहुत लंबा सवाल हो गया. विटनेस हो सकता है कहीं कंफ्यूज होके कुछ डिफरेंट जवाब दे दे, सही जवाब ना दे, और ऐसा जवाब दे दे जो शायद गलत हो. तो उसको हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन, बेस्ट वे इज फ्रेम शॉर्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जिस क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ही फैक्ट एक बारी में विटनेस से पूछते हैं. आप सुबह कितने बजे चले थे, 10 बजे. कितने बजे पहुंचे थे, 12 बजे. तो क्या हुआ, एक सवाल में एक बार में एक ही फैक्ट पूछा गया. सो वंस आप इस हैबिट को अपना लेंगे कि एक क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक ही फैक्ट आप एक बारी में पूछेंगे,
तो जो स्टोरी है वो बड़ी अच्छे से सामने आ जाएगी, वो घुमावदार स्टोरी नहीं होगी जिसमें समझने में भी दिक्कत हो। और फिर एक और टेक्निक यूज करते हैं हम बोलते हैं लिंक द क्वेश्चंस टू प्रीवियस आंसर। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने सवाल पूछा कि आप कितने बजे सुबह दिल्ली से चले थे, हमने जवाब दिया 10 बजे चले थे। तो अब आपके पास एक जवाब आ गया कि 10 बजे दिल्ली से चले थे। अगला सवाल ये होता है कि जब आप दिल्ली से 10 बजे चले तो आप कितने बजे पहुंचे। तो एक आपने पिछले सवाल को लिंक करते हुए अगला सवाल पूछ दिया, तो जवाब आया 12 बजे पहुंचे। जब आप 12 बजे पहुंचे जबलपुर पे, तो वहां से कहां गए। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर लिंकिंग द प्रीवियस आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे क्या हो रहा है कि आपकी स्टोरी भी कंसिस्टेंट बनती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक आपने पकड़ा तो एक स्टोरी कंसिस्टेंट आपकी बन जाएगी उस टॉपिक पर, अगर आप अपने जवाब को, अपना अगले सवाल को पिछले जवाब से लिंक करेंगे। तो ऑफकोर्स जब आप नए चैप्टर में जाएंगे तो आपको नए सवाल पूछना पड़ेगा, बट दिस इज अ गुड आइडिया। और उसमें क्या होगा कि आप भी जो है जब आप सवाल पूछेंगे तो यू विल ऑल्सो नॉट लूज ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग। एंड ऑफ कोर्स हम सब ने देखा है किसी समय एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर कि हम एग्जामिनेशन इन चीफ में सवाल पूछते हैं विटनेस से, या तो कोर्ट से ऑब्जेक्शन आ जाती है या ऑपोजिट साइड से ऑब्जेक्शन आ जाती है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन तो आप पूछ नहीं सकते एग्जामिनेशन इन चीफ में, एंड दैट्स अ चैलेंज कि हम कैसे अवॉइड करें। एंड एज जस्टिस सचदेवा सेड, लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें यू हैव एन आंसर, एंड लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। तो हम कैसे सवाल बनाएं जिससे कि वो सवाल जो है हमारा लीडिंग क्वेश्चन ना रहे। तो उसकी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो टेक्निक ये है कि अगर आपका प्रश्न जो है उसके शुरू में आप लगा दें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, तो आपका जो प्रश्न है वो एक ओपन एंडेड सवाल रहेगा, क्योंकि उस सवाल में जवाब नहीं छुपा होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तो मैंने सवाल किससे शुरू किया, व्हाट से शुरू किया। शर्ट का कलर मैंने उनसे पूछा है, मैंने नहीं बताया उनको, तो क्या सवाल था, व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तो वहां से जवाब आएगा व्हाइट। सो द विटनेस हैज आंसर्ड, बिकॉज इन एग्जामिनेशन इन चीफ द जज वांट्स टू नो व्हाट विटनेस हैज सीन, what witnesses suffer. Judge does not want to know in examination in chief what you want to tell the witness. So please remember, ये बहुत important distinction है। और examination in chief में आपका सवाल leading question ना बने, उसके लिए आप ये जो मैं आपको prefix बता रहा हूँ what, when, where, why, अब अभी थोड़ी देर में हम एक exercise भी करने वाले हैं जहाँ आपको मैं request करूँगा आपको कुछ ये टेक्निक यूज करने के लिए। तो यू विल रियलाइज कि जब आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हाई, व्हाई एटसेट्रा लगाते हैं तो वो सवाल जो है वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं होता है, बिकॉज द आंसर और द रिस्पॉन्स और इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द विटनेस, यू आर नॉट सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, क्रॉस एग्जामिनेशन। व्हाई डू वी क्रॉस एग्जामिन? So the two important things, of course, there could be other reasons. One is cross-examination is done to undermine the credibility of the witness. आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये witness तो विश्वास करने लायक है ही नहीं, झूठ बोल रहा है witness, या आप उस witness से कुछ ऐसी चीज निकलवाना चाहते हैं जो आपको सपोर्ट करे। So ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके हाथ में ये चीजें साबित करने की, ये विटनेस को तो आप रिलाय कर ही नहीं सकते, एंड उसके लिए स्किल्स चाहिए, आर्ट चाहिए, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे हमने बोला। तो इट कम्स विद प्रैक्टिस, बट देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट वी हैव लर्नड एंड दे कम इन हैंडी व्हेन यू वांट टू क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस। लेट्स सी व्हाट आर दोस। One is when you are preparing for cross examination,
you have to have a 360-degree view of the matter. So again, जैसे मैंने एग्जामिनेशन चीफ के वक्त बोला आपको, क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में खड़े होके फाइल उठा के आप तैयार नहीं कर सकते हैं. आपको चेंबर में, अपने ऑफिस में, अपनी टेबल पे बैठ के पूरा 360-डिग्री व्यू मैटर का समझना पड़ेगा. उसके बिना क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है. आप सोचें कि कोर्ट में फाइल उठा के हर एक पैरा का सवाल पूछते जाएंगे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं. सो वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द प्लीडिंग्स. पढ़िए. जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि काफी कुछ है मसाला सवाल पूछने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन. रीड द डॉक्यूमेंट्स, रीड द एग्जामिनेशन इन चीफ एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ चैलेंज और डिसएग्रीमेंट. वो कोर्ट में खड़े होकर नहीं हो सकता. अगर हम सुबह सोचें अगर आधा घंटा पहले तैयारी कर लेंगे, वो नहीं हो सकता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट प्रिपरेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में इट इज डिफिकल्ट टू सक्सीड. अपने क्लाइंट से मिलिए एंड असेस कि जो विटनेस जिसको क्रॉस एग्जामिन करना है उसके किस टेस्टिमनी को, किस एग्जामिनेशन इन चीफ में उसने जो बात बोली है उसको हम पकड़ सकते हैं. गलत बोला है उसने, या उसमें उसने कोई बात छुपाई है. ये सब चीजें आप कोर्ट में 2 मिनट में, 10 मिनट में नहीं कर सकते. इसके लिए आपको आराम से बैठ के तैयारी करनी होगी और अपने क्लाइंट से पूछना होगा कि ये बताओ, ये बोल रहा है इसमें, एंड यू गेट इन्फॉर्मेशन. लेट मी टेल यू, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, व्हेन यू सिट डाउन विद क्लाइंट्स एंड प्रोब देम एंड फाइंड आउट फ्रॉम देम, दे एक्चुअली कम आउट कि अरे हाँ मैं भूल गया था, ये भी हुआ था. So it requires deliberation also, and then you need to identify what you need to achieve considering the scope of witness examination in chief. जरूरी नहीं है कि उसने जो कुछ बोला उस पर ही आप सब कुछ, हर एक सेंटेंस पर आप उसको क्रॉस एग्जामिन करें, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसका किस एरिया है, क्या उसका टेस्टिमनी का एरिया है जिसमें हमें उसको क्रॉस एग्जामिन करना है. सो प्रिपरेशन, आई विल एम्फसाइज, इज वेरी इंपॉर्टेंट for our practice. Then again, what are the techniques for cross examination? So short questions. घर पहुंचे, सवाल क्या होता है, आज फिर बाहर खा के आए हो, तो शॉर्ट क्वेश्चन, पॉइंटेड क्वेश्चन, कोई स्कोप नहीं है उसमें कुछ और चीज होने का. तो शॉर्ट क्वेश्चन, पुट द विटनेस एट ईज. जैसे जैसे सचदेवा ने बताया कि आराम से थोड़ा चलो, क्योंकि जो विटनेस ऑपोजिट साइड का होता है उसको ये बताया गया होता है कि वकील साहब आपसे जो भी पूछेंगे आपको मना करना है. तो वो जब शुरू में आता है तो इस पूरी तैयारी से आता है कि मुझे सब कुछ डिनाई करना है. आप उससे पूछेंगे बाहर धूप निकली है तो कहेगा नहीं बादल छाए हुए, तो इतना भी बोलने को तैयार होगा. उसको थोड़ा पुट हिम एट ईज. सवाल पूछो, भाई कहाँ पढ़े आप, कहाँ पैदा हुए, किधर हुआ, जो भी 2-4 सवाल प्रिलिमिनरी. सो उसको लगेगा इनको तो कुछ आता नहीं है, and then you know he's at ease. Then you can go for the kill. But आप सीधा ही अटैक शुरू कर देंगे तो बहुत डिफेंसिव होगा, गार्ड पे होगा और शायद आपको उतना कोऑपरेशन नहीं मिलेगा. So it's very important for you to understand कि put him at ease. वो बहुत डिफेंसिव होके आया होगा, तैयारी करके आया होगा कि मुझे हर चीज को डिनाई करना है, तो उसको थोड़ा let him lose his guard also. That is important. Ask leading questions. Why do we say ask leading question? देखिए, हमने अभी तक देखा था एग्जामिनेशन इन चीफ में when, where, what, when आप सब सवाल पूछेंगे तो आपको विटनेस से इंफॉर्मेशन मिलेगी. पर क्रॉस एग्जामिनेशन में हमें विटनेस से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. क्रॉस एग्जामिनेशन में तो हमें विटनेस को बताना है, या सवाल ऐसा करना है कि वो या तो हाँ में जवाब दे या ना में जवाब दे, जो आप चाहते हैं. राइट? अगर मैं फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछूं कि पहले मैंने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तो जवाब आया माय शर्ट इज वाइट इन कलर. तो विटनेस ने काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी मुझे. पर अब मैं सोचता हूं कि मैं विटनेस को इतना बोलने का मौका नहीं देना चाहता, विटनेस को मैं भटकने नहीं देना चाहता. विटनेस मस्ट रिमेन कन्फाइंड टू व्हाट आई वांट हिम टू से. सो आई विल से, इज इट करेक्ट दैट योर शर्ट इज वाइट इन कलर? तो विटनेस क्या बोलेगा? यस. अगर व्हाइट कलर की शर्ट है तो उसको चॉइस नहीं दी हमने. दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन
which does not give the witness a choice to say beyond yes or no, depending upon what you want from it. So, leading questions, how to ask leading questions again is a very important technique. एक हमने देखा है हमारी आज हमने हम भी जब प्रोफेशन में आए थे तो देखते थे क्रॉस एग्जामिनेशन में कि विटनेस को केस करना शुरू कर दो, आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, जो भी चीज आपने बोली आई पुट इट टू यू लगा के बोल दो, और सवाल का जवाब आने से पहले जो स्टेनो है वो टाइप करना शुरू कर देते हैं, इट इज डिनाइड एज इनकरेक्ट, इट इज डिनाइड एज इनकरेक्ट। सो कोई विटनेस से कोई जवाब नहीं आता, आपने सवाल पूछा, स्टेनो ने टाइप कर दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया। सो प्लीज अवॉइड यूजिंग द एक्सप्रेशन आई पुट इट टू यू, बिकॉज ये हमारे सिस्टम में इतना इनग्रेन्ड है ये एक्सप्रेशन कि जहां आपने आई पुट इट टू यू लिखा, या तो कोर्ट से या स्टेनोग्राफर से सीधा वो आ जाएगा कि इसको ये डिनाई कर दो। वो कहेंगे विटनेस को भी तुम्हें भी बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो डिनाई कर दो। सो आई पुट इट टू यू इज समथिंग वी पुट इट असाइड नाउ। गोइंग फॉरवर्ड, आई पुट इट टू यू इज पुट असाइड। सो इंस्टेड प्लीज ट्राई दीज टू एक्सप्रेशंस। One is, you can say, see, I can ask him, I put it to you that you are wearing a white color shirt. लेकिन यार white तो थोड़ा नहीं है, थोड़ा off white है, no, it is not white. So, he's told कि I put it to you जब आएगा तो आपको deny करना है. So we'll try to give an answer which will not be favorable to you. But if you can put it differently, is it correct that your shirt is white in color? So it is very innocuous, बड़ा आपने साधारण तरह से उसको पूछा है, तो आपको आई पुट इट टू यू से बेहतर जवाब मिलेगा अगर आप इज इट करेक्ट एक्सप्रेशन लगाएं, या ये लगा दें डू यू अग्री दैट योर शर्ट इज वाइट इन कलर। तो यू थिंक ये हार्मलेस सी चीज पूछ रहे हैं मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बोलते हैं। बट आई पुट इट टू यू लगाने में तो तुरंत डिनाई हो जाएगा विटनेस के बोलने से पहले ही। सो ये प्लीज आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन अवॉइड इट and start using different expressions, it will definitely help us. Then हम एक और टेक्निक यूज करते हैं, we call it ring fence the witness, विटनेस के एस्केप रूट बंद करने का। तो कई बार सिचुएशन होती है कि विटनेस जो है वो भागने की कोशिश करता है जब आप उससे सवाल पूछते हैं जहां उसके पास जवाब नहीं होता है। तो अगर हम उसके भागने के जो रास्ते हैं एक एक करके बंद करते जाएं, तो विटनेस के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय इसके कि वो आपकी बात का जवाब दे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट था मैनेजमेंट का रिलेटेड, शेयर होल्डर रिलेटेड, और एक पार्टी कह रही थी कि तुमने ठीक काम नहीं किया, कंपनी ठीक से नहीं चलाई। दूसरी पार्टी का कहना था कि भाई हमने क्या, कंपनी तो तुम ही चला रहे थे, जो कंपनी का जो फैक्ट्री मैनेजर था जो प्रोडक्शन देखता था वो भी तुमने अपॉइंट करा था। तो उसने कहा नहीं ये तो आपकी सलाह से अपॉइंट हुआ था। तो ये सब बात हुई, खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद हमने सवाल पूछा, और ये हमें कैसे पता लगा कि जब हम बात कर रहे थे क्लाइंट से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि जो फैक्ट्री मैनेजर था, कि हम जब ये डिस्प्यूट हुआ उसके बाद ये छोड़ के उस व्यक्ति के पास चला गया जो कह रहा था कि फैक्ट्री मैनेजर यूजलेस था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन मिली। जो व्यक्ति क्रॉस एग्जामिनेशन में बोल रहा था कि फैक्ट्री मैनेजर यूजलेस था, उसको हमने तुरंत सवाल पूछा कि क्या ये बात सही है कि फैक्ट्री मैनेजर हमारी कंपनी को छोड़ के तुम्हारी कंपनी में फैक्ट्री मैनेजर ज्वाइन कर लिया। तो बताइए कि जिसको वो यूजलेस बोल रहा है उसको खुद ही एम्प्लॉय कर रहा है आफ्टर द डिस्प्यूट्स अरोज, ऑब्वियसली his testimony is not to be believed. So you have to block all the ways for the witness to escape. Justice Lucia sir ने भी mention बताया था हमें, avoid asking questions on a subject where you don't know the answer. तो अगर आपको नहीं पता कि क्या जवाब मिलने वाला है तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। इन क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है आप दूसरी पार्टी का केस ही साबित कर दें ऐसा सवाल पूछ के। तो प्लीज अवॉइड ऐसा सवाल ना पूछें जिसका आपको ही जवाब ना पता।
जवाब आपको कैसे पता होगा? आपने अपने क्लाइंट से मिले होगे, तैयारी करी होगी, तो क्लाइंट आपका बताएगा कि हाँ, इसका मेरे पास जवाब है ही नहीं। तो ऐसे एरिया में हम ना जाएं जहां हमें जवाब ही नहीं पता कि क्या जवाब मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इट्स अ ह्यूज रिस्क अगर हम ऐसे एरिया में जाते हैं। अवॉइड रेपिटेशन।